Hello everyone, welcome all. Today in the series of Indian polity, we'll start with the chapter Parliament. Before that, we had already completed Constituent Assembly, features of the Constitution, preamble, fundamental right, fundamental duties, directive principle. Apart from that, Vice President, Prime Minister and Council of Ministers. So today we will discuss with Parliament, very important for all competitive exams because it is the base on which democracy is established. It is the most prevalent part of Indian Constitution. So let's begin. So Parliament, Indian Parliament will start with, and in this Indian Parliament, it is mentioned in part 5th of the Constitution. Part 5th of the Constitution deals with Indian Parliament from Article 79 to Article 122. From Article 79 to Article 122, Indian Parliament is there. Okay. And India borrowed the parliamentary system. India borrowed the parliamentary system. Parliament system from Britain. Parliamentary system was borrowed from Britain because, as I told you, Britain has the parliamentary system. In Britain, the parliamentary system prevailed. There are two types of system basically. One is parliamentary system where the parliament is the supreme, parliament is the supreme, and the executives are directly responsible to the parliament. And one is presidential system where president is the most important part. Although in India also, president play a very significant role, but still we have the parliamentary system. Here the head of the government is prime minister and the head of the state is president, whereas in the presidential system, head of the government is president. Okay, so Indian Parliament is mentioned from Article 79 to Article 122, part 5th of the Constitution. So Parliament include basically three forms. First is Lok Sabha, House of People, then Rajya Sabha and President. These are three different organizations under the Parliament of India. That is Lok Sabha, Rajya Sabha and President of India. All three together form the Parliament. All three together form the parliamentary system. So this is basically the parliamentary system which consists of Lok Sabha, Rajya Sabha, President mentioned in part 5th from Article 79 to Article 122, and we borrowed the parliamentary system from Britain. Okay? Chaliye. So we'll start with individual bodies. First, let's begin with Lok Sabha. First is Lok Sabha, popularly called as lower house. Lower house, popular house, lower house, या हम इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, तो लोअर हाउस. ओके, लोक सभा दैट इज लोअर हाउस. तो इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन ऑफ लोक सभा. सो the maximum number of Lok Sabha members, maximum number of members in Lok Sabha, maximum number of members in Lok Sabha is 250. The maximum number of members in Lok Sabha is the maximum number of members in Lok Sabha one second. Yeah. So the maximum number of members, यहाँ मैं लोक सभा लिख देता हूँ, लोक सभा, maximum number of members in Lok Sabha is 550. 550 is the maximum strength for Lok Sabha. Now you all get surprised कि सर पार्लियामेंट की हर किताब में लिख रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इन लोकसभा इज 552.
550 तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस होते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट आया है, ठीक है, रिसेंटली अमेंडमेंट आया है जिसमें SC ST और रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हैं उसको 10 इयर्स और बढ़ा दिया गया है, उसमें एंग्लो इंडियन के प्रोविजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा नाउ इज 550, ओके, एंड द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ Lok Sabha, current strength of the member of Lok Sabha is 543। पहले ये 545 होता था, लेकिन अब ये 543 रहेगा। 543 इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा, ओके। ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस and House of People, that is called as Lok Sabha. It is called as Lok Sabha. Next is Rajya Sabha. So how many members are there in Rajya Sabha? पहले तो इसको क्या क्या बोलते हैं? Rajya Sabha also called as upper house, House of Elders, So the composition, maximum number of members in Rajya Sabha, maximum number of members in Rajya Sabha is 250, and the current strength is 245, where 233 are elected and 12 are nominated by president. So this is the strength of Rajya Sabha. Popularly called as upper house, House of Elders. Maximum number of members in Rajya Sabha is 250. Current strength is 245. 233 are elected and 12 are nominated. Similarly, in 250, 238 are elected and 12 are nominated. Basically, the nominated people are from the different fields like art, literature, साइंस, सोशल सर्विसेज, इन्हीं लोगों से वो होते हैं। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज। अब जैसे आप बोलेंगे सर सचिन तेंदुलकर तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को आर्ट का ही एक फॉर्म माना गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली राज्यसभा के बारे में बात हो गई कि राज्यसभा के 250 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज duration. What is the duration of the houses? So what is the duration basically? One second. भैया ये बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार अटक रहा है, बोर्ड में दिक्कत आ रही है, अटक रहा है ये। बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है सर, पहले भी ये 2-3 बार अटक गया था लेकिन। सो नाउ इन द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा? So the duration of Lok Sabha is, the term of Lok Sabha is 5 years.
The term of Lok Sabha is 5 years. Although many a times it happened that it can cease before 10 years, it can dissolve before 10 years if they lose the majority or if there is a proposal called as no confidence motion is passed. What happened in this case? Suppose the total number of seats in the Lok Sabha are 543. The total number of seats in Lok Sabha are 543. So if in that case 272 seats are required for a party to form the majority, and if in that case it reduces from 272 to any number 271, 270, 269, in that case it led to the no confidence motion. And if that no confidence motion is passed against the current government, then the duration is reduced, the government is dissolved at that particular movement. So the usual duration is 5 years, but it may be less also if no confidence motion is passed. So the duration of Lok Sabha is 5 years, whereas the duration of Rajya Sabha, it is a continuous body. It is a continuous body. राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा के अगेंस्ट कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता. इट इज अ कंटिन्यूअस बॉडी एंड द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, द टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर. मेंबर का टर्म 6 साल है, इज 6 ईयर. ठीक है, जो राज्यसभा के एमपीज हैं उनका टर्म फिक्स है कि 6 ईयर्स होगा, लेकिन राज्यसभा कंटिन्यूअस बॉडी एंड नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन. इन राज्यसभा 1/3 members retire after the end of second year. After the end of second year, and fresh members are elected at the beginning of third year. At the beginning of third year. ठीक है, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टर्म 6 ईयर्स है. 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर के एंड में रिटायर होते हैं और फ्रेश इलेक्शंस जो होते हैं या फ्रेश मेंबर जो अपॉइंट होते हैं वो बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर में हो जाते हैं. तो टर्म समझ में आया. लोकसभा का टर्म 5 ईयर्स का है. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो 5 साल से पहले भी लोकसभा भंग की जा सकती है, डिसॉल्व की जा सकती है. वही राज्यसभा का जो टर्म है वो इनफाइनाइट है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती. ऑल द मेंबर्स का टर्म 6 ईयर है. 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और फ्रेश इलेक्शंस होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की क्या क्वालिफिकेशन है? First, he shall be the citizen of India. भारत के सिटीजन होने चाहिए. He shall be the citizen of India. Second, he should not be less than 25 years of age in Lok Sabha and 30 years of age in case of Rajya Sabha. तो एज जो है 25 साल से कम की नहीं होनी चाहिए लोकसभा के केस में और 30 इयर्स इन केस ऑफ राज्यसभा.
तीसरा, he should not hold any office of profit, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड नहीं किया हो। So these are the qualifications to become a member of parliament. He shall be a citizen of India. He should not be less than 25 years of age in case of Lok Sabha and 30 years of age in case of Rajya Sabha. He should not hold any office of profit. कोई भी office of profit उनके द्वारा hold नहीं किया जाना चाहिए। Next is disqualification. Disqualification ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें दो तरह की डिस्क्वालिफिकेशन आती है। एक तो होती है जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, और एक होती है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। पहले जनरल डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे अनसाउंड माइंड के हो गए, अनसाउंड माइंड हो गए, ठीक है। उसके अलावा कोई अनसाउंड माइंड के हो गए, उसके अलावा इन्होंने मान लो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लिया, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन्होंने होल्ड कर रखा है, ठीक है। तीसरा है फेल टू लॉज हिज अकाउंट, फेल टू लॉज हिज अकाउंट डिटेल्ड, फेल टू लॉज हिज अकाउंट डिटेल। तो इस तरह की जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, अनसाउंड माइंड हो गए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, या फेल टू लॉज हिज अकाउंट एक्सपेंसेस, अकाउंट एक्सपेंसेस नहीं बता रहे, एक्सपेंसेस के बारे में नहीं बता रहे, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनडिस्चार्ज्ड दिवालिया जिसको हम कहते हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए। तो ये सारी जनरल डिस्क्वालिफिकेशंस हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। वेयरएज डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? फर्स्ट, he shall, if he vote, सॉरी if लिख देते हैं यहां पे, if he vote against the decision of the party, पार्टी ने मान लो बोला कि इस प्रपोजल पे के फेवर में वोट करना है, बंदे ने अगेंस्ट में कर दिया। इस प्रपोजल के अगेंस्ट में वोट करना है, बंदे ने फेवर में कर दिया, तो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पार्टी। सेकंड, इंडिपेंडेंट मेंबर joins any political party, join any political party। कोई बंदा, कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन में खड़ा हुआ कि भाई मैं निर्दलीय खड़ा हूंगा, जीत गया, और जीतने गया उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए कोलिएशन में बीजेपी ज्वाइन करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कि बीजेपी के पास 250 सीट्स आई हैं लोकसभा इलेक्शन में, और 15 उसने इंडिपेंडेंट मेंबर्स को अपने साथ जोड़ लिया, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो कोलिएशन है। लेकिन अगर ये 15 अपनी बीजेपी की मेंबरशिप ले लेते हैं, then it is a problem, then it is defection under anti-defection law under 10th schedule, disqualification under 10th schedule. Third, if any nominated member join any political party six months after his nomination,
मतलब कोई नॉमिनेटेड मेंबर है जिसको हमने नॉमिनेट किया, उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस नॉमिनेशन के 6 महीने बाद उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वो 10 शेड्यूल में आ जाएगा। हाँ, 6 महीने से पहले अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं नॉमिनेशन होने के बाद तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 मंथ बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो हमने क्या देखा, एंटी डिफेक्शन लॉ में 10th शेड्यूल में क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट, इफ ही वोट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पार्टी, पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट वोट कर रहा है। सेकंड है, इफ इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। देन थर्ड, if any nominated member join any political party 6 months after his nomination, in all these cases he booked under anti-defection law mentioned under 10th schedule. Clear? चलिए नेक्स्ट इसके अंदर अब पॉइंट आता है वेकेशन ऑफ सीट। वेकेशन ऑफ सीट, किस केस में आपको सीट्स वैकेट करनी पड़ेगी, किन किन केसेस में आपको सीट्स वैकेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट देखिए, इफ एनी मेंबर is elected in both the houses of parliament, if any member is elected in both the houses of parliament, then in that case he should have to choose anyone, otherwise his membership of Rajya Sabha will get terminated. अगर कोई मेंबर है वो दोनों हाउसेज में इलेक्ट हो जाते हैं तो विद इन 10 डेज उनको बताना पड़ेगा कि वो कौन से हाउस को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए नाम के कैंडिडेट हैं, ये लोकसभा में भी चुन लिए जाते हैं और राज्यसभा में भी चुन लिए जाते हैं, तो इन्हें विद इन 10 डेज बताना पड़ेगा कि कौन से हाउस को ज्वाइन कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इन्होंने नहीं बताया तो राज्यसभा से इनकी मेंबरशिप चले जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, इफ एनी member who is already elected on one seat and get another seat, his seat in first house get terminated. देखो बहुत सिंपल है। पहली वाली सिचुएशन में क्या हुआ है, पहली वाली सिचुएशन में यह हुआ है कि एक बंदा है वो लोकसभा राज्यसभा में, एक कैंडिडेट है वो लोकसभा राज्यसभा में दोनों में एक साथ इलेक्ट हुआ। जैसे 5 साल इलेक्शन, जैसे सपोज करो प्रेसिडेंट ने आज उनको नॉमिनेट कर दिया था राज्यसभा मेंबर, कल लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट आए और उसमें वो किसी भी सीट से जीत गए। ठीक है, अब वो एक ही समय पे दोनों सीट से चुने तो उनको विद इन 10 डेज डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से हाउस को चुन रहे हैं, अदरवाइज उनकी राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी। ये तो फर्स्ट सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में यह है कि वो ऑलरेडी किसी हाउस के मेंबर है, जैसे वो राज्यसभा के मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर है। मान लो कि जैसे सचिन तेंदुलकर को उन्होंने नॉमिनेट किया है, अब उसी ड्यूरेशन में 2 महीने बाद 3 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और सचिन जी मुंबई की किसी सीट से लड़ रहे हैं, अब वहां पर वो जीत जाते हैं, तो उस केस में वो राज्यसभा के मेंबर ऑलरेडी क्योंकि नॉमिनेटेड है और वहां पे वो लोकसभा का इलेक्शन भी जीत गए, उस केस में उनको एक हाउस छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी जो पहला हाउस है राज्यसभा से उससे सीट टर्मिनेट हो जाएगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि वो लोकसभा ज्वाइन कर रहे हैं या राज्यसभा से ज्वाइन कर रहे हैं। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज है, इफ एनी मेंबर is elected on the 2 seats of the same house, he has to choose one, otherwise both seats became vacant, become vacant। इसमें क्या सीन हुआ, लोकसभा में जैसे एक सीट है
मान लो कि मोदी जी थे, मोदी जी 2014 के इलेक्शन में बड़ौदा से भी जीते और बनारस से भी जीते। अब उन दोनों में से उनको एक ही सीट चूज करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने दोनों सीट्स के बारे में बताया नहीं कि वो कौन सी चूज कर रहे हैं, तो दोनों सीट्स उनकी चले जाएंगी। तो अ पर्सन इफ ही वॉन फ्रॉम 2 सीट्स इन अ सेम हाउस, ही हैज टू चूज वन, अदरवाइज हिज सीट्स विल बिकम वैकेंट। और चौथा है, इफ एनी मेंबर is a member of state legislature, is a member of state legislature, state legislature का member है वो, and he became member of parliament, so within 14 days उसको बताना पड़ेगा कि वो कौन से हाउस को, and he became MP, within 14 days he has to tell which house he is choosing, which house he is choosing, अदरवाइज उसकी पार्लियामेंट की सीट चले जाएगी। जैसे मान लो ऐसा हो कि मैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से, मालवीय नगर विधानसभा जो है वहां से मैं एमएलए हूं, ठीक है, और उसी बीच में एमपी पार्लियामेंट का इलेक्शन जो मैं लड़ा और वहां से मैं जीत गया, जयपुर अर्बन या जयपुर रूरल से मैं जीत गया। उस केस में मुझे बताना पड़ेगा 14 दिन के अंदर अंदर कि मैं कौन सा हाउस ज्वाइन कर रहा हूं, भाई मैं एमएलए ही रह के खुश हूं या मुझे एमपी बनना है। अगर मैंने नहीं बताया विद इन 14 डेज की ड्यूरेशन में, तो मेरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली सीट है वो चले जाएगी। तो ये होता है इन केस ऑफ वेकेशन ऑफ सीट। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे और वेकेशन कैसे हो सकता है। तो एक तो हमने डबल मेंबरशिप पढ़ लिया। वेकेशन ऑफ सीट में बेसिकली फर्स्ट हमने पढ़ लिया ये रहा, ये डबल मेंबरशिप का केस है कि भाई ये डबल मेंबरशिप के केस में ये चीजें हो सकती हैं। सेकंड इसमें आता है डिस्क्वालिफिकेशन, जो हम पढ़ ही चुके हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में जो आता है वो हम लोग देख ही चुके हैं। और कैसे वैकेंट हो सकती है उनकी सीट। थर्ड इज रिजाइन कर दें, ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, रिजाइन कर दिया भाई, अपना रेजिग्नेशन दे दिया, देन ही कैन रिमूव। एंड फोर्थ एब्सेंस, एब्सेंस 60 डेज तक बिना किसी नोटिस दिए, 60 डेज तक बिना किसी नोटिस दिए लगातार आप 60 दिन तक छुट्टियों पे हो तो भी आपकी मेंबरशिप चले जाएगी। आपने बताया नहीं स्पीकर को या चेयरमैन को और आपने 60 दिन की छुट्टियां ले ली एक साथ, तो आपने उस केस में, हाँ लेकिन ध्यान रखना ये कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, मतलब लगातार होनी चाहिए 60 डेज की छुट्टी आपकी जो आप ले रहे हो। उसके बाद हम बात करेंगे ओथ। ओथ, every member of parliament is administered oath by president of India। तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। तो ओथ जो है, देखो ओथ का भी दो प्रोसेस है। एक तो जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं ना कि भाई मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं तो नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा हूं, उस टाइम वो ओथ लेते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। जब वो एमपी बन जाते हैं फिर वो मिनिस्टर की ओथ ले रहे होते हैं, तब वो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक। अब बात कर लेते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा की। स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में आप देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा। लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा को चेयर करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। सेकंड, he maintain order and decorum in the house,
ठीक है। तीसरा, he is chosen from ruling party by the member of Lok Sabha themselves. By the member of Lok Sabha themselves. Clear? Fourth, he gave his resignation. He gave his resignation to deputy speaker. ये अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। फोर्थ है, फोर्थ इज रिमूवल। रिमूवल ऑफ स्पीकर। स्पीकर को कैसे रिमूव किया जाता है? रिमूवल ऑफ स्पीकर। हाउ स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड। हाउ द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड। आप स्पीकर ऑफ लोकसभा को कैसे रिमूव करते हो? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? सो देखो, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इट इज डन बाय effective majority by giving a notice of less than by giving a notice of 14 days। 14 दिन का आप नोटिस देंगे उन्हें हटाने के लिए, और उनको हटाने के लिए 50 मेंबर्स जो है वो उनके प्रपोजल की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने बताया ना, प्रेसिडेंट के केस में 100 मेंबर्स का प्रपोजल चाहिए अपॉइंट करने के लिए, और 50 वाइस प्रेसिडेंट के केस में, 30 वाइस प्रेसिडेंट के केस में। सिमिलरली अगर आपको स्पीकर को हटाना है तो 50 मेंबर्स का प्रपोजल पहले चाहिए होगा लोकसभा के द्वारा कि हम इन स्पीकर को हटाना चाहते हैं। और ये हटते कैसे? इफेक्टिव मेजोरिटी से। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? 2/3 ऑफ मेंबर्स present and voting and half of total members of Lok Sabha, half of total members of Lok Sabha minus absent and vacant seat। एब्सेंट एंड वैकेंट सीट। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत सिंपल सी बात है। जितने मेंबर्स आए हैं, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जितने मेंबर्स आए हैं उनका 2/3 ले लिया आपने, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, एंड हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स। जैसे लोकसभा के केस में अगर मान लो उस दिन 450 लोग आए हैं तो 2/3 ऑफ 450 एंड हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स। हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स का मतलब हो गया 545 में से आपको एब्सेंट और वैकेंट सीट्स जो हैं, 545 में से एब्सेंट और वैकेंट सीट जो है आपको हटानी पड़ेगी। 545 में से एब्सेंट और वैकेंट सीट जो है आपको वो हटानी पड़ेगी। तो आप एब्सेंट और वैकेंट सीट उसमें से हटा देंगे, उसका हाफ आपको लेना है। ठीक है, तो इस तरह से स्पीकर का रिमूवल होता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि स्पीकर को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। वापस मैं रिपीट करवा देता हूं। स्पीकर सबसे पहले तो ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द हाउस। लोकसभा के चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, स्पीकर जो होता है वो ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन रखते हैं हाउस के अंदर। उसके अलावा स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। अगर लोकसभा चाहे तो वह स्पीकर को हटा सकती है, लेकिन उसके लिए पहले 50 लोग नेम प्रपोज करेंगे कि भाई इनको हटाना चाहते हैं हम लोग। उसके बाद उनको इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग एंड हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स माइनस एब्सेंट एंड वैकेंट सीट। नेक्स्ट इज डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर, मैं अभी स्पीकर के फंक्शंस भी बताऊंगा आपको, पहले डेप्यूटी स्पीकर कर लेते हैं। डेप्यूटी स्पीकर का क्या काम है? ही इज फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी। यूजुअली डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो ऑपोजिशन पार्टी से होता है। ऑपोजिशन पार्टी से होता है। ही गेव हिज रेजिग्नेशन to speaker
to Speaker of Lok Sabha, to Speaker of Lok Sabha. Third, he presides the House. He presides the House when Speaker is not present. When Speaker of Lok Sabha is not present. Speaker of Lok Sabha is not present. अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा की तबीयत खराब है, स्पीकर ऑफ लोकसभा बाहर है, अनेबल काम नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो डेप्यूटी स्पीकर को उस समय के लिए स्पीकर बना दिया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चुनने से पहले एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, 8-10 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, वो पैनल बनाया जाता है। अब पैनल ऑफ अराउंड 8 to 10 पीपल्स का पैनल होता है, और इसी पैनल में से स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है कि भाई ये 8-10 लोग जो पैनल वाले थे, इन्हीं में से स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर कौन होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है, अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट है, तब तो इस पैनल में से कोई भी एक बंदा स्पीकर बन जाएगा और हाउस को रन कर लेगा। लेकिन अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है, मान लो उनके अगेंस्ट प्रपोजल हो गया रिमूवल का या डेथ हो गई, वैकेंट हो गई सीट, उस केस में प्रेसिडेंट चूज करते हैं कि वो किसे स्पीकर बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें एक बार कि अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है तो 8 या 10 का जो पैनल है इसमें से स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर वो बना लिया जाएगा। लेकिन अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है, उस केस में प्रेसिडेंट चूज करते हैं कि उन्हें किसे स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बनाना है। चलिए आगे अब देखेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ स्पीकर। स्पीकर के क्या क्या फंक्शंस हैं? स्पीकर के क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट, ऑर्डर और डेकोरम, हम देख ही चुके, ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करते हैं। सेकेंड, certifies whether a bill is money bill or not, whether a bill is money bill or not, सर्टिफाई करते हैं कि बिल मनी बिल है या नहीं है, इज मनी बिल, तो ये सर्टिफाई इनके द्वारा किया जाता है। थर्ड, रिमूवल ऑफ मिनिस्टर, रिमूवल ऑफ एनी एमपी अंडर 10th शेड्यूल, वो भी ये डिसाइड करते हैं अंडर 10th शेड्यूल। अगर 10th शेड्यूल में कोई है, कोई मेंबर है तो उसको रिमूवल करवा देते हैं। फोर्थ, ही एडजर्न्ड द हाउस, ही एडजर्न्ड द हाउस, ठीक है। लुक्स फॉर कोरम ऑफ द हाउस, कोरम देखते हैं ये क्या होता है, अभी देखेंगे। कोरम ऑफ द हाउस, उसके अलावा अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सिक्स्थ, ही डू द कास्टिंग वोट, he do the casting vote in case of tie, in case of tie। अब देखो ये क्या हुआ, he do the casting vote in case of tie। देखो मान लो एक बिल आया, कोई भी बिल है, मान लो फूड सेफ्टी बिल है या किसी तरह का कोई बिल है, उसमें उस दिन लोकसभा को सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करना है। अब लोकसभा में उस दिन 500 लोग आए, 250 ने उसके फेवर में वोट किया और 250 ने उसके अगेंस्ट में वोट किया। अब क्या होगा, बिल पास होगा ही नहीं, 250 ने फेवर में किया, 250 ने अगेंस्ट में किया है। इस केस में स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होते हैं वो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए कास्टिंग वोट करते हैं। ही डू द कास्टिंग वोट टू ब्रेक दिस डेडलॉक, इसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट। पहली बात। दूसरी बात, जब ये 250 वोट कर रहे थे तो स्पीकर उस केस में वोट नहीं करते।
इन जनरल जब वोटिंग होती है किसी बिल को लेकर तो स्पीकर विल नॉट वोट, बिकॉज स्पीकर जो होता है रूलिंग पार्टी से होता है, तो ऑब्वियसली ये बात हो जाएगी कि स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी के फेवर में ही वोट करेंगे। इसलिए जब भी अगर बिल के प्रपोजल में या बिल के इनिशियल टाइम पे जब वोटिंग चल रही है तो ही विल नॉट वोट। मतलब जैसे कोई पब्लिक सेफ्टी बिल आया या फूड सेफ्टी बिल आया, उस फूड सेफ्टी बिल के ऊपर आपको वोटिंग करनी है, तो उसमें पहली बार में स्पीकर वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वोट करेंगे। लेकिन अगर वो टाई हो गई, 250 टाई हो गया, तो स्पीकर वोट करते हैं उसको तोड़ने के लिए, उस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए। ये बात पहली। दूसरा, अगर स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, भाई कि स्पीकर को हटाया जाए, स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, तो in that case he can vote in first instance, he can vote in first instance but not in the case of tie, but not in case of tie। जैसे स्पीकर के हटाने का प्रोसेस चल रहा है, रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, उसी बीच में कोई बिल आ जाता है, तो उस केस को प्रिसाइड कौन करेगा उस समय? हाउस को डेप्यूटी स्पीकर। लेकिन जब उस बिल के ऊपर फर्स्ट टाइम वोटिंग हो रही है तो स्पीकर वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो अब एमपी है, स्पीकर नहीं है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ना वो अभी भी, तो ही कैन स्टिल वोट ऑन दैट बिल। और अगर उस केस में टाई हो जाता है तो उसको, उस डेडलॉक को तोड़ेंगे डेप्यूटी स्पीकर। क्यों? क्योंकि अब डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर है। और अगर नॉर्मल प्रोसेस में चल रहा है तो डेप्यूटी स्पीकर जस्ट एक एमपी है, तो ही कैन वोट और अगेंस्ट कर सकते हैं, फेवर में कर सकते हैं, वो उनका खुद का कॉल है। तो मैं वापस बता देता हूं। पहली सिचुएशन है, स्पीकर जो है उनके, वो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, कोई रिमूवल का प्रोसेस नहीं है, एकदम से एक बिल आता है, उस बिल के ऊपर स्पीकर वोट नहीं करेंगे जब तक कि उस पर टाई नहीं हो जाए उस बिल पे, फेवर और अगेंस्ट में, तो डेडलॉक को तोड़ने के लिए वोट करेंगे। पहले सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है, स्पीकर को हटाया जा रहा है, उसी बीच में एक नया बिल आता है, तो उसको डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, और वो अगर टाई होता है तो डेप्यूटी स्पीकर उसमें वोट करके उसको डेडलॉक को डिसाइड करेंगे। लेकिन उस सेकंड वाली सिचुएशन में स्पीकर वोट कर सकते हैं फेवर या अगेंस्ट में, क्योंकि उस समय वो स्पीकर नहीं है, एक नॉर्मल एमपी की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन। सो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है राज्यसभा का, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसके अलावा इनके रिमूवल का प्रोसेस सेम है, इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव होता है, 14 दिन का आपको इनको नोटिस देना पड़ता है, और ये भी वाइस पहले इनको। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखें, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हटाने से पहले उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है उसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से हटा दिया और वो वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ है। It will not happen. If you want to remove the chairman of Rajya Sabha, first remove him from the post of vice president. इनके केस में ये बात हो ही गई, अगर ये एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन विल प्रिसाइड। If he is absent, deputy chairman will preside. Deputy chairman will preside if he is absent. If he is absent. अब इनके केस में देखो क्या होता है, he do the casting vote in case of tie. He do the casting vote in case of tie. कोई टाई हो गया तो ये बिल्कुल कास्टिंग वोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए चेयरमैन के खुद के रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, चेयरमैन के रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, तो ही कैनॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑल्सो। He cannot vote in the first instance also because he is not the member of parliament. Chairman of Rajya Sabha is not the member of parliament. तो मैं अब आपको एक टेबल बना के समझा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां है स्पीकर और यहां है
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहां स्पीकर और यहां चेयरमैन। अब यहां पे हम दो सिचुएशन ले लेते हैं। पहली नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन, ये नॉर्मल सिचुएशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन फर्स्ट इंस्टेंस he will not vote. In first instance he will not vote. Same, यहां पर भी सेम चीज है। in the first instance he will not vote. अब नॉर्मल सिचुएशन में टाई हो जाता है, नॉर्मल सिचुएशन में टाई हो जाता है। he can do casting vote, he can do casting vote डेडलॉक को तोड़ने के लिए। सेम, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन आ गई, रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, रिमूवल प्रोसेस चल रहा है। अब रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, उस केस में क्या होगा, रिमूवल प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो रिमूवल प्रोसेस में व्हाट दे विल डू, स्पीकर he can vote in first instance, he can vote in first instance, and deputy speaker become the speaker, deputy speaker became the speaker. He cannot vote in first instance also. He cannot vote in first instance also. तो ये बात हुई अब आपकी जनरल पैरेलेंस में कि क्या स्पेशल पावर्स हैं इन दोनों के पास में। ठीक है, तो ये हमने देखा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के कंटेक्स्ट में ये सारी चीजें क्या है। और लास्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर का क्या रोल है, तो देखिए प्रोटेम स्पीकर का क्या रोल होता है। जो सबसे पहली बार जब हाउस बनता है तो प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर, ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा। He is appointed by president. He is appointed by president. Even he take oath before president. He take oath before president. ये oath भी president के सामने लेते हैं। He take oath before president. Second, प्रोटेम स्पीकर appoint the speaker of the house, appoint the speaker of the house। तो ये रोल होता है प्रोटेम स्पीकर का। फ्रेश पार्लियामेंट जब बनता है, फ्रेश सेशन जब शुरू होता है इलेक्शन के जस्ट बाद, तो उसमें प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करता है। प्रोटेम स्पीकर फिर स्पीकर को अपॉइंट करता है और फिर ये हट जाता है अपनी पोस्ट से। उसके अलावा एक आध दो छोटे टॉपिक और हैं, लाइक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कौन सी पार्टी ऑपोजिशन में होती है, कौन सी पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कॉल करती है। जिस पार्टी के पास 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ हो, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, उसको हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी बोलते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, जैसे 55 वोट्स आ गए किसी पार्टी के पास, तो जो सेकंड नंबर पे जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो होती है ऑपोजिशन पार्टी। और इसमें एक और होता है कोरम। कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर टू रन द हाउस,
टू रन द हाउस। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू रन द हाउस कितने होते हैं? ये भी 1/10 होते हैं। मतलब आपको अगर हाउस रन करना है तो एटलीस्ट 55 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए उस दिन हाउस के अंदर। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने देखा क्या क्या पार्लियामेंट के प्रोसेस में होता है। कॉम्पोजिशन देखा, रिमूवल्स देखा, उनके टर्म पीरियड देखा, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में हमने बात करी। आगे इसी सीरीज में पार्लियामेंट को हम कल भी नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड। पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच।